Hello students. Now after discussion of graphical representation of different type of motion, now today we will discuss mathematical equation of motion. So basically when an object moves along straight line with uniform acceleration, it is possible to relate velocity, acceleration and distance by different equations. So the possible equation of motion are v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square and v square minus u square equal to 2as. So basically these equations are named as, this is velocity time equation. By this way you can just relate this velocity time relation. This is your position time relation. This is your position time relation. And this third one is your position velocity relation. This is velocity and this is position. So you will name it as position velocity relation. Now these three equations, now here with the help of graphical method you will derive these three equations. So we can derive it directly as well as by graphical method, but now we have to do as per our syllabus by graphical method only. So first of all we will derive equation. This is first equation. This is I am taking velocity time relation. Velocity time relation. So when you are plotting velocity time relation, velocity you are taking on vertical axis and time on horizontal axis. As if we are taking u is the initial velocity, so let that t equal to 0, at the starting time velocity is there, body is having some initial velocity, and after that it is in uniform motion. The graph will be like this, it will be a straight line. So basically from this graph now we have to see how can we calculate velocity time relation. So सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पर यूज करेंगे, that let this point is A, let this point is B, and corresponding to this if I will draw perpendicular on velocity axis as well as on time axis, time let it be t and this is velocity v. What we have done, हमने क्या किया है, एक पॉइंट A लिया जिसमें t इक्वल टू 0 पर, यानी यहाँ पर ये टाइम एक्सिस है, t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड v u है और आफ्टर टाइम t स्पीड इज v. तो अब इस केस में अब अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो हम क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ. स्लोप ऑफ vt ग्राफ जब हम निकालेंगे तो इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हम कहेंगे दिस विल बी, यानी ये वाला मेजरमेंट माइनस ये मेजरमेंट. इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू दिस वन. इनको नेम करते हैं ए बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ओ. सो इसके लिए अब हमने क्या किया है, ए सी को हमने पैरेलल लिया है ओ डी का. What will be the purpose जब हम ऐसा कर रहे हैं, let we do few specifications here also. OA हो गया U. अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ OE. दिस इज OE इज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ का मेजरमेंट जो कि वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है V, राइट. अब अगर हम देखते हैं ये BD लाइन OE के इक्वल है तो यहाँ से हम कह सकते हैं BD किसके इक्वल हो गई, V के इक्वल. तो अब अगर हमें इंटरसेप्ट लेना है वर्टिकल एक्सिस पर तो यानी हमें मेजरमेंट चाहिए AE या कहें BC. तो बेसिकली सबसे पहले हम देखें यहाँ पर BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए BC निकालना है, यानी अब यहाँ देखिए BD क्या है, BD दिस इज इक्वल टू BC प्लस CD. BD जो है पूरा दिस इज BC प्लस CD. अब BD का वैल्यू क्या है, दिस इज V, यहाँ से अभी हमने लिखा है
v, BC अननोन है और CD क्या होगा, देखो CD किसके इक्वल है, OA, क्योंकि इसके इक्वल है ये, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं CD इज इक्वल टू, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज CD इक्वल टू OA, दैट इज U। तो यहाँ CD की वैल्यू हो गई U। तो यहाँ से आ गया BC इक्वल टू V माइनस U, यानी ये जो मेजरमेंट है, यानी ये मेजरमेंट जो है वो कितना हो गया, V माइनस U। सो BC की वैल्यू आ गई V माइनस U। अब यहाँ पर देखिए स्लोप में हम जब देख रहे हैं तो एक्सीलरेशन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जब लिखेंगे दैट स्लोप, एज पर दिस स्लोप एक्सीलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दिस इज टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी यानी इधर लेंगे तो वर्टिकल एक्सिस इंटरसेप्ट अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v माइनस u, ये हमने अभी निकाला है। दिस डिवाइड बाय टाइम टेकन, फाइनल टाइम t और स्टार्टिंग पॉइंट का टाइम 0, सो इट इज v माइनस u अपॉन t। तो अब यहाँ पर हो गया a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, v माइनस u इक्वल टू at, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस at। सो ये हो गई आपकी वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। तो बेसिकली हमें ध्यान क्या रखना है, कभी भी ग्राफिकल मेथड से जब हमें इसे डिराइव करना है तो सबसे पहले यू विल ड्रॉ अ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, इसकी कुछ इनिशियल स्पीड होगी। ये पहला पॉइंट है, जो हिंट है, जो आपको ध्यान रखना है। फिर स्पेसिफिकेशन करना है कि ये वैल्यू OAU OEV, फिर हम यहाँ पर परपेंडिकुलर जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि हम इस VU यानी ये इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस जो कि BC के पैरेलल है उसकी वैल्यू निकालें। अब यहाँ पर स्लोप क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन वर्टिकल एक्सिस टू द टाइम टेकन, ये किसके इक्वल है, V माइनस U। तो V माइनस U अपॉन T, इससे हमने निकाला है ये। तो बेसिक स्टेप यानी ये ग्राफ, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप आपको ये याद रखना है, मिनिमम वाला स्टेप, तीसरा ये वाला, यानी इन 3 स्टेप से ये पूरी इक्वेशन डिराइव हो सकती है। Now after this equation, let we are taking another equation for position time relation. अब इसके लिए भी आपको मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इक्वेशन होगी दैट विल बी बिटवीन वेलोसिटी, यानी जो ग्राफ हम बनाएंगे दैट विल बी बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सो नाउ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ सेम वही ग्राफ है। एक चीज़ आपके लिए बड़ा इसमें पॉजिटिव रहेगी कि तीनों इक्वेशंस के लिए आपको एक ही तरह का ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें आपने ये स्टार्टिंग पॉइंट लिया O, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इनिशियल स्पीड है U, और यहाँ पर मान लो A पॉइंट लिया जो टाइम है जिसके कोरिस्पॉन्डिंग T, और इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने ली वेलोसिटी, इसके कोरिस्पॉन्डिंग दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज V। तो आप कहेंगे U इज द इनिशियल स्पीड एट T इक्वल टू 0, V इज द फाइनल स्पीड आफ्टर टाइम T। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पर ही ध्यान रखना है पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए हम यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम रिजल्ट यूज करेंगे दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, अंडर VT ग्राफ। अब देखिए वो एरिया अंडर ग्राफ क्या है, एरिया अंडर ग्राफ यानी ये वाला रीजन, तो मैं इसको नेम करते हैं, लेबलिंग करते हैं OA, दिस इज B, लेट दिस बी C। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ एक जस्ट लाइन आप चाहें तो ये दिखा सकते हैं, दैट इज इंडिकेटिंग द हाइट। अब यहाँ इस केस में दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, आप चाहें तो ये लाइन दिखा सकते हैं, आई हैव जस्ट शोन इट, लेट इट बी CE। अब इस केस में देखिए ये ध्यान रखना है कि जब आपको पोजीशन टाइम रिलेशन निकालना है पोजीशन का टाइम के साथ, तो एरिया अंडर VT क्या है, एरिया ऑफ OCBA, यानी OCBA। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि ये किस किस के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल
एज वेल एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी, दिस इज CBE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज OCEA। तो यहाँ पर डिस्टेंस को मैंने S से डिनोट कर दिया, स्टार्टिंग से लिख सकते हैं। अब आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो गया CE एंड हाइट हो गया इसका BE। देखिए ये बेस ये हाइट प्लस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल है यहाँ पर OCEA, तो इसमें रेक्टेंगल हो गया आपके पास जिसकी साइड्स हैं OA मल्टीप्लाइड बाय AE, प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स। अब हमें CE, BE, OA, AE सबकी वैल्यू इस फिगर के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। आप चाहें तो पहले भी लिख सकते थे। तो सबसे पहले इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ मैं लास्ट स्टेप में ही लिखूंगी OA इक्वल टू U, दिस OC है तो OC इक्वल टू U। अब OC किसके इक्वल है, CA के इक्वल है, EA के। OC किसके इक्वल है, EA के इक्वल है, तो इसको मैंने लिख दिया EA, OC इक्वल टू U इक्वल टू EA। अब यहाँ से देखिए हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, CE देखिए, CE देखिए, CE किसके इक्वल है, OA के इक्वल है, और OA की वैल्यू कितनी है, T, ये स्टार्टिंग टाइम या आफ्टर टाइम T, तो OA इक्वल टू CE, OA इक्वल टू CE और इसकी वैल्यू लिख दी मैंने T। अब क्या टर्म रह गई, BE, BE देखिए फिगर में BE किसके इक्वल होगी, दिस इज AB माइनस EA, देखिए BA लिख रही हूँ मैं, दिस BA हम BE निकालना है, तो BE निकालने के लिए हम क्या कहें कि यहाँ से BE की हम किसकी वैल्यू लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, फिगर में ध्यान से देखिए, दिस इज BA माइनस EA। देखिए एक बार BE निकालना है, BA माइनस EA, चाहे आप AB माइनस AE कर दो, एक ही तरह की बात है। सो BE इज BA माइनस EA। तो आपके पास यहाँ देखिए हमारे पास CE आ गया, BE भी आ गया, OA आपके पास आ गया, यहाँ से AE भी आ गया, तो सारी डेटा आ गए हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हमें पुट करना है, तो पहले हमें BE निकालना है। देखिए BE अभी हमने सॉल्व नहीं किया है। फिगर में देखिए BA किसके इक्वल है, BA इस एक्सिस से, यानी अगर ये लाइन इसके इक्वल है तो ये पूरा मेजरमेंट है V और ये वाला मेजरमेंट है U, यानी ये AB। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू V है और AE किसके इक्वल है, U के इक्वल। तो अगर मैं कहूँ मुझे BE फाइंड आउट करना है तो ये BE क्या होगा, AB माइनस EA, तो ये हो जाएगा V माइनस U। यही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए दिस इज BA इज V, EA इज U, तो ये हो गया V माइनस U। सो एक बार रिपीट कर रहे हैं स्टेप, ध्यान से देखिए। इसमें ग्राफ के मेन पॉइंट को समझना है। OC इज इक्वल टू AE, तो AE इक्वल है U और यहाँ पर AB इक्वल है पूरा V, तो BE हम निकालेंगे दिस V माइनस U। अब सभी वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। अब सभी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस होगा हाफ CE की वैल्यू आपने अभी लिखी है, CE इज T, BE इज V माइनस U प्लस OA इज T मल्टीप्लाइड बाय AE इज U। हमने सिर्फ उन वैल्यूज़ को पुट किया है। अब इन वैल्यूज़ को जब हमने पुट कर दिया है तो यहाँ पर आपके पास मैं रीअरेंज करूँ, S क्या आ गया, UT प्लस हाफ TV माइनस U। तो अब इस केस में देखिए यहाँ पर ये V माइनस U का है। अब इसके लिए हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन, अब हमने जो पहले इक्वेशन निकाली थी V माइनस U इक्वल टू 80, अभी फर्स्ट इक्वेशन थी V माइनस U इक्वल टू 80, तो यहाँ से V माइनस U को हम 80 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, तो S क्या हो जाएगा, UT
प्लस हाफ टी इंटू ए टी, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की वैल्यू हो जाएगी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा ये डेरिवेशन है, यू मस्ट लर्न हाउ टू डिराइव इट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये 2 से 3 मार्क में डेरिवेशन आ जाता है। तो मेन स्टेप, सबसे पहले आप ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के बाद अभी सभी इन मेजरमेंट्स को लेबल कर देंगे। फिर रिजल्ट जो आपको याद रखना है कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, फिर इनकी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपके पास रिजल्ट आता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम कहते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अभी इससे पहले जो इक्वेशन निकाली थी जहाँ हमने स्लोप के कॉन्सेप्ट से यूज़ किया था, तो ए टी को जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं इट इज़ यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। सो एस कम्स आउट टू बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। Now, after these two equations, next we are doing equation for position velocity relation. इसको भी मैथमेटिकली हमें डिराइव करना है। तो देखिए ग्राफ हम बिल्कुल वैसे ही ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल स्पीड है v, and after time t, if I will just draw this point, this perpendicular, this final velocity is v. Let this point is A, this point is B. Further, I am just taking that we have to use this area O, A, B and this point is C. लेबलिंग आप सेम रख सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, सब ये आप पर ही डिपेंड करता है। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या निकालना है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो आपको याद रखना होगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको जो रिजल्ट यूज़ करना है, दैट डिस्टेंस equal to area under VT graph. This is area under VT graph. और इसका हम जो एरिया लेंगे वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा है यहाँ पर, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिकेशन भी यूज़ करेंगे। क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, साइड्स हो गई ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी ओ सी। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ ओ ए की वैल्यू है u, बी सी कंप्लीट है v और ओ सी कितना है t। देखो फिगर में देखिए ये u o a, बी सी है v, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट, ये पूरा मेजरमेंट v और o से c का मेजरमेंट है t, टोटल टाइम टेकन। नाउ लेट वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर। तो यहाँ हो जाएगा s इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी। अब देखिए जब हम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन लगाते हैं, निकालते हैं, तो इसमें टाइम का कोई रोल नहीं होता, तो हमें टाइम को रिमूव करना होगा। तो अब इसके लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी फ्रॉम इक्वेशन v माइनस यू इक्वल टू ए टी, इसमें हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इस इक्वेशन में टाइम निकालते हैं तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। सो नाउ जब इसकी वैल्यू हम यहाँ इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s विल बी इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाय a, दिस इज इक्वल टू s। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर। सो दिस इज योर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन।
इक्वेशंस को इनके नेम से डिराइव करना पता होना चाहिए. पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. तो पहला इक्वेशन क्या था? पोजीशन टाइम रिलेशन. और उससे पहले क्या था? वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो ये तीनों रिलेशंस आपको डिराइव करने आ सकते हैं. मेन पॉइंट, आपको इक्वेशन ये गिवन हो, डिराइव दिस रिलेशन भी हो सकता है, या फिर इसका नाम दे दें डिराइव पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन. सो आई होप दिस डेरिवेशंस आर क्लियर. तो सबसे पहले आपको इसमें ग्राफ प्लॉट करना, फिर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ये इसका की पॉइंट है. ये इसका स्टार कर लो कि डिस्टेंस हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. वेयर एज जब हम निकालते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन, तो यहाँ का क्या स्टार पॉइंट है, की पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये इसका मेन पॉइंट है. इसको आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि इस पॉइंट्स के बाद ही आप इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. और फर्स्ट इक्वेशन जो आप यूज कर रहे थे, इन द फर्स्ट इक्वेशन यू आर सिंपली यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. सो कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं? एक केस हुआ है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, और दूसरा रिजल्ट यूज हुआ है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिविंग यू distance. So this is all for today. You have to just note it down, understand it, and try it to do by yourself minimum 2 times. Then only you will get confidence. If you have any query, any problem, you can ask. Thank you. Have a nice day.